Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is on third ventricle. Third ventricle is a slit-like cavity of diencephalon. We know there is forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain called prosencephalon. फिर prosencephalon के भी further दो parts हैं, diencephalon and telencephalon. ठीक है, टीलेंसेफेलॉन आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाता है और जो डायनसेफेलॉन है उसके फर्दर 4 कंपोनेंट्स हैं, उसमें एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सब थैलेमस हमारे पास आते हैं. जो स्लिट लाइक कैविटी है थर्ड वेंट्रिकल की, दैट इज कॉल्ड डायनसेफेलॉन. इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन टू थैलेमाई. ठीक है, दो थैलेमाई के दरमियान. वी नो थैलेमाई egg shaped masses of gray matter. In previous video we have talked about thalamus. There are 4 fluid-filled ventricles in brain, 2 lateral ventricles, 1 third ventricle and 1 fourth ventricle. 2 lateral ventricles communicate with third ventricle through interventricular foramen. Then third ventricle posteriorly communicates with fourth ventricle through narrow cerebral aqueduct of Sylvius. Then fourth ventricle, it communicates through 3 foramen. Foramen इसकी ना fourth ventricle की एक roof है और एक floor है. In roof of the fourth ventricle there are 3 foramina through which fourth ventricle communicates with CSF filled subarachnoid space, and this ventricle also communicates with central canal of spinal cord. Let me tell you very important thing. Ventricular system of brain and central canal of spinal cord embryologically derived from lumen of neural tube या फिर कैविटी ऑफ न्यूरल ट्यूब. ठीक है, आपको पता है कि थर्ड वीक में जब न्यूरोलेशन होती है, एम्ब्रोलॉजिकल जो इंट्रायूट्राइन लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, तो जब थर्ड वीक में न्यूरोलेशन हो रही है तो न्यूरल ट्यूब बनती है. ठीक है, न्यूरल ट्यूब का जो ल्यूमेन है ना, दैट फॉर्म्स वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. वेंट्रिकल्स में कोरोइडल प्लेक्सस होता है. ठीक है, वो सिक्रीट कर रहे हैं CSF. अब दिस CSF मूव्स फ्रॉम वेंट्रिकुलर सिस्टम इनटू वीनस सिस्टम. ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, इट कम्युनिकेट्स विद CSF फिल्ड सब एरेक्नॉइड स्पेस. सब एरेक्नॉइड स्पेस से एरेक्नॉइड जो है ग्रैनुलेशंस इमर्ज होती हैं विच प्रोट्रूड इंटरनल मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर टू ड्रेन इनटू वीनस साइनसेस. दैट इज हाउ अ वेंट्रिकुलर सिस्टम या CSF फिल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टम कम्युनिकेट्स विद वीनस सिस्टम. Okay, third ventricle has different boundaries: anterior wall, posterior wall, lateral wall, superior and inferior. अब हम जो है इसकी walls देख लेते हैं. उससे पहले मैं आपको ये भी डायग्राम बता देती हूँ. ये देखें, ये थैलामाई हैं. these are egg shaped masses of grey matter, slit like cavity called third ventricle, lentiform nucleus, wedge shaped. ये नीचे वाली डायग्राम देखें. these are थैलामाई. दरमियान में जो स्लिट लाइक गैप है, कैविटी, दैट इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल. इट इज अ कैविटी ऑफ डायनसेफेलॉन. ओके, दिस सी शेप्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्वाड्रेट न्यूक्लियस. दिस wedge shaped grey matter called lentiform nucleus, and this is thin sheet of grey matter called claustrum. This thalamus and quadrate nucleus is separated from lentiform nucleus by a band of nerve fibers which is called internal capsule. And this lentiform nucleus is separated from this claustrum by another band of nerve fibers, white matter, called external capsule. Then this claustrum, which is a sheet of grey matter, it separates external capsule from subcortical white matter of insula. यहाँ पे cerebral cortex है ना बाहर की तरफ सारा, तो ये सब यहाँ पे insular cortex है. अब cortex के नीचे subcortical white matter है. Then it means this claustrum separates this external capsule from subcortical white matter of insula. यहाँ पे भी white matter है ना, white matter. ओके, अब हम थर्ड वेंट्रिकल की बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे. ये देखें, ये सेजिटल सेक्शन ड्रॉ किया मैंने डायनसेफेलॉन का राइट साइड पे. दिस होल इज कॉर्पस कैलोजम. इट इज़ वन ऑफ द कमिश्रल फाइबर, लार्जेस्ट कमिश्रल फाइबर है आपके पास कॉर्पस कैलोजम. ये एंटीरियर मतलब फ्रंटल एंड है, और ये जो है ये ऑक्सीपिटल है मतलब पोस्टीरियर. ओके, दिस होल इज कॉर्पस कैलोजम. कॉर्पस कैलोजम का के 4 पार्ट्स हैं: रोस्ट्रम, जीनू, बॉडी एंड द टेल इज कॉल्ड सप्लीनियम. कॉर्पस कैलोजम एंड फॉर्निक्स. दिस यू कैन सी, दिस इज फॉर्निक्स. दिस इज सेप्टम pellucidum. Corpus callosum. This is septum pellucidum. Septum pellucidum is a sheet of nervous tissue containing both grey matter and white matter. It's stretched between corpus callosum and body of fornix. मतलब जीनू ऑफ कॉर्पस कैलोजम एंड बॉडी ऑफ फॉर्निक्स के दरमियान में जो नर्वस टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड सेप्टम पेल्यूसिडम. फिर ये फॉर्निक्स पे आपको पता है कि कमिश्रल फाइबर की एक एग्जांपल है. इसका दो क्रस्ट हैं, राइट क्रस्ट एंड लेफ्ट क्रस्ट, दैट यूनाइट टू फॉर्म बॉडी ऑफ फॉर्निक्स. फिर बॉडी ऑफ फॉर्निक्स से इमर्ज होते हैं कॉलम्स.
Here this swelling is the anterior column of fornix. ये राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे भी एंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स है. एंटीरियर कॉलम्स ऑफ फॉर्निक्स कनेक्ट राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरल लोब्स. ये फॉर्निक्स के बिल्कुल नीचे. दिस इज कोरोइडल प्लेक्सिस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल. ओके, सेजिटल सेक्शन है ना ये डायनसेफेलॉन का, तो ये बेसिकली जो है लैटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल है. दिस इज लैटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल. इसमें ये थैलेमस है. दिस स्वेलिंग इज कॉल्ड इंटरथैलेमिक कनेक्शन विच इज़ ग्रे मैटर. ये देखें, ये थैलेमस है. ठीक, अब ये थैलेमस की जो मीडियल सरफेस है ना, इट फॉर्म्स अपर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल. इनके दरमियान में एक कनेक्शन होता है ग्रे मैटर का विच इज़ कॉल्ड इंटरथैलेमिक कनेक्शन विच इज़ ग्रे मैटर, बैंड ऑफ ग्रे मैटर. अच्छा, ये जो मीडियल सरफेस ऑफ थैलेमस है फॉर्म्स अपर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल. तो लोअर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल बनती है हाइपोथैलेमस से. ये देखें, ये हाइपोथैलेमस और ये थैलेमस. दीज टू स्ट्रक्चर्स आर सेपरेटेड बाय sulcus विच इज़ कॉल्ड हाइपोथैलेमिक sulcus. दिस लाइन इज हाइपोथैलेमिक sulcus. ओके, उसके बाद फिर ये सारा जो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, अगर इसकी बात कर लें तो ये आपके पास हैबिनुलर कमिशर है विच इज़ अ पार्ट ऑफ आई गेस एपिथैलेमस. यस, एपिथैलेमस भी डायनसेफेलॉन के कंपोनेंट है. उसमें पाइनियल बॉडी है, हैबिनुलर न्यूक्लियाई है और हैबिनुलर न्यूक्लियाई के दरमियान में हैबिनुलर कमिशर है. हैबिनुलर कमिशर, पाइनियल बॉडी या फिर पाइनियल ग्लैंड, ये पोस्टीरियर कमिशर. ये फिर मिड ब्रेन की बात कर लेते हैं, उसका टेक्टम है सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस एंड दिस इज सेरिबैलम, पोन्स, मेडल्ला. और ये अगर हम देखें तो ये देखें, ये आपके पास है रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोसम. इट इलोंगेट्स टू फॉर्म व्हाट? इट इलोंगेट्स टू यूनाइट एंटीरियर कमिशर. दिस swelling that is just anterior to anterior column of fornix, this swelling is called anterior commissure. It is one of the commissural fiber which runs across a sheet of gray matter called lamina terminalis. This is lamina terminalis. Okay, then this is optic chiasm. Optic chiasm क्या है? It is the flattened bundle of nervous tissue जहाँ पे nasal fibers from retina क्रॉस करते हैं और फिर वो crossed fibers एंटर हो जाते हैं ऑप्टिक ट्रैक में. और temporal fibers ipsilateral आई के होते हैं, मतलब ipsilateral रेटिना के temporal fibers और contralateral जो है रेटिना के nasal fibers एंटर होते हैं ऑप्टिक ट्रैक में. एनीवेज, ऑप्टिक chiasm, दिस स्वेलिंग इज कॉल्ड ट्यूबर साइनेरियम. यहाँ से ये इनफंडिबुलम मतलब स्टार्क, और दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. और ये पीछे ये जो स्वेलिंग है, दीज आर मेमिलरी बॉडीज. ये राइट साइड पे तो ऑब्वियसली एक लेफ्ट साइड पे भी मेमिलरी बॉडी है. मेमिलरी बॉडीज के दीज आर स्मॉल स्वेलिंग्स ऑफ ग्रे मैटर ऑन इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ हाइपोथैलेमस या फिर ऑन इंफीरियर वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल. एक ही बात है. दिस emerging nerve is oculomotor nerve, मतलब third cranial nerve, and this is pons and so on. This fossa is interpeduncular fossa. This gap is interpeduncular fossa. What is interpeduncular fossa? It is a depression on the anterior aspect of midbrain between two crus cerebri. midbrain के तीन पार्ट्स हैं ना, crus cerebri, tegmentum and tectum. तो crus cerebri के दरमियान में जो डिप्रेशन है, that is called interpeduncular fossa. In the floor of interpeduncular fossa there is a very important area called posterior perforated substance. उसमें जो परफोरेशंस है ना, अपर्चर्स हैं, उसमें से पास करती हैं ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज. अच्छा, अब अगर एक पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है तो क्वाइट ऑब्वियस देयर मस्ट बी एन एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस? यू रिमेंबर ओल्फैक्टरी नर्व, फर्स्ट क्रेनियल नर्व, वहाँ से ओल्फैक्टरी बल्ब, फिर ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट. As olfactory tract reaches anterior perforated substance, it divides into olfactory stria, medial and lateral. फिर मीडियल से निकलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फाइबर्स जो एंटर हो जाते हैं ऑपोजिट ऑल्फैक्टरी बल्ब में, और लैटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया टर्मिनेट्स इन ऑल्फैक्टरी एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स. एनी हाउ, अब हम बात कर रहे हैं इसकी थर्ड वेंट्रिकल की.